Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where the plan today is to take the chapter of Bill of Exchange, which is for SYJC Maharashtra Board Accountancy subject एक कदम आगे. ओके, पिछले कुछ लेक्चर्स से जब से मैं ये जो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हमने कवर अप कर ली है इस चैप्टर के बारे में काफ़ी समय पहले कि बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसे है, उसका कंटेंट क्या होता है, उसके कनेक्शन में जो पार्टीज होते हैं, मतलब एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई, कभी कभी होता है पेई, इसको हमको किस तरह समझना है. और फिर एक दो या मुझे लगता है 3 लेक्चर पहले हमने इस बात की भी शुरुआत कर ली थी कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूछे, ऐसा नहीं है कि अगर पूछेंगे, कंफर्म्ड आपको पूछेंगे, बट वो जो जर्नल एंट्रीज होते हैं वो ड्रॉवर का पूछेंगे कि ड्रॉई का पूछेंगे, ये आपको पता होना चाहिए. अभी उसके लिए मैंने आपको एक एरोबाजी की टेक्निक सिखाई है. जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर ने हमको सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं. हमें अभी तक याद है, 20 साल हो गए सीख के, 20 से ज़्यादा साल हो चुके हैं. आई होप आपको भी 20 साल के बाद में ये टेक्निक मदद आए, जहाँ पे आपको कोई भी जर्नल एंट्री बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. आज क्या हम ड्रॉवर के बुक्स में जर्नल करेंगे या ड्रॉई के बुक्स में? अच्छा, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रॉवर हो ड्रॉई हो, 2 पेज के जर्नल की ज़रूरत आपको होगी. एक लेफ्ट रखिए, एक राइट रखिए तो बेहतर होता है. सो आई रिपीट, आपके लिए भी इजी है और एग्जामिनर जो करेक्ट करता है ना, क्योंकि पूरा सोल्यूशन उसको किताब के जैसे लेफ्ट राइट दिख जाता है, वो बड़े आसानी से करेक्ट करता है. खुश हो के मे भी थोड़ा ज़्यादा मार्क्स भी आपको दे दे. ओके, सो आई होप 2 पेज का जर्नल आपने बना लिया. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया आ जाएगा. फर्स्ट लाइन में क्या कहा? वरुण. अगेन ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ नोट. हाँ, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के लिए. वरुण सोल्ड गुड्स टू नताशा. इतना स्टेटमेंट पढ़ा, पूरी कहानी नहीं पढ़ी, बट एक आइडिया आ जाता है कि सेलर कौन है, बायर कौन है. सेलर बीइंग वरुण, बायर बीइंग नताशा. वरुण अकाउंटेंसी के भाषा में ड्रॉवर होता है और नताशा ड्रॉई. लास्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंटली लास्ट लाइन क्या कहा? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वरुण. तो आप वरुण हो, मैं वरुण हूँ, वरुण सेलर है, मतलब ड्रॉवर. 2 चीज़ें जो आपको तैयार रखनी है. एक, जर्नल ऊपर लिख के रखना है इन द बुक्स ऑफ वरुण.
सेलर, ड्रॉवर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक डायग्राम रेडी रखना है जो ड्रॉवर का डायग्राम है। तो आप देख सकते हो ड्रॉवर सेंटर में है, सेल्स, कैश, बिल, रिसीवेबल, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आज से काम आएगा तो चिंता ना करें, मैं बताऊंगा कि क्यों काम आएगा और आज से आगे जाके मुझे लगता है लगभग सारे सम्स में काम आएगा। और यहाँ पे नताशा है तो वो बायर है, क्योंकि हम नताशा नहीं है, हम जानते नहीं है कि नताशा के दुकान में क्या है, किधर है, और हमको इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि हम डबल रोल नहीं प्ले कर रहे, जुड़वा नहीं, आज जुड़वा नहीं है, हम सिर्फ वरुण है, इकलौते वरुण, और वरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये आगे आने वाला सम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्या पुराना है क्या नया है। हाँ, आप लोग भी कुछ इस तरह ही आपके रफ पेपर में ड्रॉ कीजिए। ऑल्सो जब आप ड्रॉ करते हो नीटनेस की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो एरो हम बनाते हैं वो क्लियरली आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए। अपने तरफ से तो मैं दिखा ही दूंगा, बट इन फ्यूचर एक माँ बाप बच्चों का हाथ हमेशा थोड़ी थाम के चला सकते, बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा हो जाता है ना। तो सिमिलरली आई विल एक्सपेक्ट कि आप भी कभी ना कभी तो बड़े हो जाओगे और आप एक दिन बोलोगे कि हमको ये बच्चों के टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, हम ये दिमाग में करते हैं। तो अच्छी बात है, तो अभी आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर याद रखिए, डू रिमेंबर कि एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में किसी भी तरह का डायग्राम अलाउड नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम में आप ये ड्रॉ करते हो, प्लीज़ इसे पेंसिल में बनाएं और रब आउट करें, पेंसिल में बनाएं और रब आउट करें। क्यों? क्योंकि ये नॉट रिक्वायर्ड है फॉर द अकाउंटेंसी सॉल्यूशन। आपको आंसर चाहिए, आपको डेबिट क्रेडिट चाहिए, एरो मारने के बाद डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, हमारा मतलब निकल जाएगा, थोड़ा मतलब ही बनना पड़ेगा। हाँ, फिर रब आउट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, सो हम वरुण है, हम ड्रॉवर है, हम सेलर है, ये हमारी पोजीशनिंग है। उस तरफ कौन आएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पिछली बार मैंने समझाया था, बैंक आ सकता है, एंडोर्समेंट का काम हो सकता है, या बैंक फॉर कलेक्शन आ सकता है। तो देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। तो दी वेरी एंड ऑफ योर पेपर, आपका पेपर भी कुछ इस तरह दिखना चाहिए। सेंटर में ड्रॉवर, ऑन वन साइड ड्रॉई एंड दी अदर साइड खाली खाली। कोई आ जाएगा तो उसको हम जगह वहाँ पे दे देंगे। बाय द वे, अगर आपको कन्फ्यूजन है, ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है, जस्ट बता देता हूँ मैं, वरना आप सोचोगे कि सर ये कौन सा रिश्ता आपने बना दिया। लेट्स रीड द क्वेश्चन and let's start with a solution. Varun sold goods to Natasha of 25,000 full stop. Okay, रुक जाता हूँ। मैंने, ऐसे बोलना है आपको, मैंने नताशा को गुड्स बेचे। हाँ, तो कहानी तो ऐसी ही शुरू होती है ना। एंट्री क्या आएगी? देखो, मैंने ऐसे एरो मारा सेल से नताशा जी तक, तो नताशा को पॉइंट करता है, तो नताशा डेबिट, सेल्स क्रेडिट। बढ़िया है, फर्स्ट एंट्री आ गया 25,000 का, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। नताशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन विच इज़ द वर्ड बीइंग, डोंट कीप इट अननेसेसरली, डोंट मेक इट अननेसेसरली लॉन्ग। बड़ा रामायण मत बनाओ, सिंपल रखो ताकि आपको कुछ बाय हार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, लेट्स रीड अहेड। कहा है नताशा एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द सेड अमाउंट for 2 months drawn by Varun, full stop। सेंटेंस बाय सेंटेंस जाते हैं। ओके, पिछले लेक्चर्स में पार्ट पेमेंट करके कुछ होता था। अभी कुछ बच्चे जो है, सर पिछले 3 प्रॉब्लम में पार्ट पेमेंट है, यहाँ पे पार्ट पेमेंट क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, कहानी थोड़ी बदल गई, बराबर। सो जैसी कहानी है वैसे डायलॉग हमको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे बोला नताशा ने एक बिल साइन किया और पैसे तो कुछ नहीं दिए, तो जो बिल होगा उसकी कीमत पूरे 25,000 की रहेगी। प्लीज़ याद रखिए कि बिल का ड्रॉ होना वो पहले होता है, और क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती, हमने बिल बनाया, हम ड्रॉवर है, हमने नताशा को दिया, नताशा मैडम ये ले लीजिए, पढ़ लीजिए, सब समझ लीजिए, सही लगा तो साइन करके हमको लौटा दीजिए। ड्रॉ इज़ अ ड्राफ्ट, मतलब एक रफ डॉक्यूमेंट है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। वेरी सिंपल,
उसके लिए आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी नहीं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आता है। ओके, आगे जाते हैं। तो नताशा जी क्या करेगी, साइन करके हमको लौटा देगी, उसको कहते हैं एक्सेप्टेड। अभी बिल की कीमत है, अभी बिल का वैल्यू है, तो हम ये वाली एंट्री ज़रूर पास करेंगे और हमेशा ये एंट्री हम करेंगे। ओके, एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल को पॉइंट करता है, तो बिल रिसीवेबल डेबिट, और नताशा जी से थोड़ा घूम फिर के बट शुरू होता है, तो क्रेडिट 25,000, तो एंट्री हम 25,000 का लिख लेते हैं। बिल रिसीवेबल डेबिट टू नताशा 25,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ओके, इसके आगे की कहानी थोड़ी देर में थोड़ी पलटी खाएगी, लेट्स सी कि वो पलटी क्या होगी। आगे क्या कहा सेकेंड लाइन में, ऑन वरुण डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर 24,500 फुल स्टॉप। क्या होता है डिस्काउंटेड, तो माय डियर पिछला लेक्चर प्लीज़ देख लीजिए, मैंने बड़े आसानी से और इत्मीनान से आके स्लोली समझाया है। थोड़ा बता देता हूँ। जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है विच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 25,000 इन दिस प्रॉब्लम, और अगर आपको पैसा चाहिए अभी के अभी, याद रखिए ये डॉक्यूमेंट 2 महीने का है, तो नताशा तो 2 महीने बाद पैसे देगी, बट व्हाट इफ आपको इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होता है, नहीं मेरे को पैसे अभी चाहिए, नताशा तो पैसे नहीं देगी, तो फिर मैं क्या करूँ, आप ये बिल लो और बैंक को बेच दो, उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। क्योंकि जैसे ही ये बिल आप बैंक को बेच देते हो, आप बोलते हो बैंक तू रख, मेरे को पैसे दे, बैंक आपको पैसे देगा, थोड़ा पैसा काट के बट पैसा देगा। प्लीज़ याद, ऊपर क्या बोला, 24,500 के लिए ये बिल बैंक को बेचा गया, तो चलिए बैंक आ जाएगा, हमने बेच दिया। अभी वैल्यू पे आपको ध्यान देना है कि बैंक मुझको कितना दे रहा है, 25,500, तो बैंक डेबिट 25,500, बट ये जो बिल है वो तो 25,000 का है, तो बीच में 500 रुपया गायब है। वेरी इंपॉर्टेंट, बीच में 500 रुपया गायब है। वो 500 क्या है सर मैडम, वो डिस्काउंट है, वो हमारा नुकसान है, हमको वो नुकसान लेना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक हमारी आई वुडंट से मदद कर रहा है, मतलब वो भी अपने पैसे कमा रहा है, बट चलो बैंक भी कुछ कमा रहा है और हमको भी हमारी इमरजेंसी में मैक्सिमम पैसा मिल रहा है। इसका जर्नल एंट्री क्या है, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, जहाँ पे बैंक डेबिट है और बिल रिसीवेबल क्रेडिट है, बट बीच में जो गैप आता है ना 500 का, वो भी डेबिट होगा। अभी वो डेबिट कैसे होगा, पिछली बार बताया था, आज वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं। बैंक अकाउंट डेबिट 24,500 एंड बिल रिसीवेबल इज क्रेडिट 25,000, एंड व्हेन यू पे अटेंशन टू द एंट्री यूज से, अरे इधर तो डेबिट में कुछ डेबिट में गायब है, क्रेडिट में नहीं, तो डेबिट में 500 रुपया क्या है, डिस्काउंट, नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इन एनी प्रॉब्लम जहां पर भी आप बिल बैंक को बेच दो, ओके, आप उनको रखने के लिए नहीं दे रहे हो, बेच दो, ले लो, आप मालिक, आपको पैसा मिलेगा, बट आपको पैसा मिलेगा थोड़ा कट के मिलेगा। ओके, तो मतलब यहां पे बिल हमारे पास नहीं, अब बैंक के पास चला जा चुका है। तो टेक्निकली आप में से कुछ लोग बोल सकते हो चलो भाई अपना टेंशन नहीं है, अभी एक तरीके से सही है, क्योंकि वरुण ने बिल, हमने ये बिल बैंक को बेच दिया, आगे जाके जो भी बातचीत, लेन देन, ईमेल बाजी, व्हाट्सएप बाजी होगी, वो बैंक और नताशा के बीच में होगी। हम बोलेंगे हमको तो पैसा मिल गया। आई रिपीट, दैट इज व्हाट आइडियली शुड हैपन। 2 महीने बाद बैंक आप सीधे बात किससे करो, नताशा से, नताशा आपको पैसा दे देगी, हमको बीच में मत डालो। हाँ, बट कहानी मैंने बोला ना थोड़ा मोड़ लेती है। सेकेंड लाइन पढ़िए, क्या, ऑन ड्यू डेट, अच्छा 2 महीने बाद 3 दिन बाद, 2 महीना 3 दिन बाद जो डेट आता है, द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय नताशा। अभी ये थोड़ा कुछ हटके है। डिसऑनर्ड का मतलब क्या, देखिए भाई पैंडेमिक ऐसा था कि अच्छे बिजनेसमैन बराबर का बिजनेस ठप हो गया या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था,
बराबर। तो जो उनको पेमेंट्स करने थे, ये बिल आया, वो बिल आया, काफ़ी बार वो उस बिल को डिले करते थे। यार पेमेंट तो आज करना था, पैसे नहीं है तो क्या करूँ, बाद में दे दूंगा। तो जब आप टाइम पे पेमेंट नहीं करो उसको डिसऑनर कहा जाता है। और यहाँ पे 2 महीने 3 दिन बाद नताशा जी को पेमेंट करना था, बट द स्टेटमेंट अबाउ सेज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब क्या, नताशा कुड नॉट पे। आई रिपीट, नताशा डिड नॉट पे, नताशा कुड नॉट पे। तो अभी आप समझ सकते हो, ये अगर डायग्राम आप देखोगे कि बैंक 2 महीने बाद नताशा के पास गया और नताशा क्या बोलती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो गुस्सा कौन होगा, बैंक होगा। और वो बैंक गुस्सा किस पे निकालेगा, मुझ पर निकालेगा, वरुण, क्योंकि वो दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा। बैंक दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा और बोलेगा अरे क्या हो गया, नताशा तो पैसे ही नहीं दे रही है, हमने आपको पैसे पहले ही दे दिए, क्या चक्कर है ये। सो आई रिपीट, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो कहानी मोड ले लेती है, ओके, टर्न ले लेती है। पहले सीधा चल रहा था, सब कुछ हैप्पी 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 था, अब थोड़ा ड्रामा होगा। ओके, सो टेक्निकली नताशा ने पेमेंट नहीं दिया, बैंक को पेमेंट नहीं मिला। इन दिस सिचुएशन व्हाट कैन वी डू, यू सी, हम ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन टेलीविजन पे कोई भी सीरियल देखो जिसमें सास बहू घर, ओके, ड्रामा बहुत होता है। छोटा सा सीन है, छोटा सा मामला है, खींच के 1 हफ्ते के एपिसोड बन जाते हैं, इतना कैमरा एंगल्स लगते हैं। यहां पे भी थोड़ा ड्रामा होगा। वरुण विल हैव टू टॉक टू नताशा एंड आस्क, पूछना पड़ेगा, अरे नताशा क्या हो गया, यू हैड साइंड द बिल, यू हैड प्रॉमिस्ड यू विल पे, सो नाउ व्हाई आर यू नॉट पेइंग। डिसऑनर, डिसऑनर मतलब आपने पैसे नहीं दिए, तो प्रॉब्लम क्या है। सो सी, इफ नताशा इज इन जेन्युइन प्रॉब्लम, ओके, उनको मदद की जरूरत है, वो बोलेगी कि वरुण आई डोंट हैव मनी रे, थोड़ा कोविड की वजह से ना बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ नुकसान हो गया बिजनेस में, तो मेरे पास पैसा नहीं है, ओके, अब कुछ हो सकता है क्या। तो देखिए, वरुण मतलब हमको रिश्ता बैंक के साथ भी रखना है और नताशा के साथ भी रखना है। हमको नताशा को भरे बाजार में चिल्ला चिल्ला कर, अरे कैसी लड़की है ये, पैसे नहीं देती है, ड्रामा मत करो। ड्रामा करने से नताशा जी का मजाक तो उड़ ही जाएगा, बट आपका कोई भला नहीं होने वाला। तो वरुण क्या करेगा, ओके, हम वरुण हैं, हमें परिस्थिति को समझना है। हम बोलेंगे ओके होता है रे, नताशा जी आपके साथ हो गया, आपके बिजनेस के साथ में हो गया, कल मेरे साथ हो सकता है, मैं आपकी मदद कर देता हूं, कल कुछ हो जाए तो आप मेरी मदद कर लेना। सो इस मदद को क्या कहा जाता है, रिन्यूअल। आई अंडरस्टैंड, वेल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। तो दैट इज व्हाट इज द अहम मुद्दा ऑफ टुडे, कि ये रिन्यूअल क्या होता है। ओके, रिन्यूअल इज अ प्रोसेस जहां पर द ड्रॉवर वरुण will come to a compromise with Natasha. He will talk to Natasha. अच्छा Natasha, 25,000 you can't pay, बराबर? So can you pay something? तो Natasha may say, yes I can pay 10,000, 8,000, 5,000, 15,000. I can pay something, but I can't pay 25,000. Okay Natasha, no problem. You pay little, and the remaining you pay later. You pay little, and the remaining you pay later. But please understand Natasha, because you're paying later and you're delaying the money, you see the bank is very angry, okay, interest has to be taken from you, so please understand. Varun सहानुभूति, okay, दिखा रहा है, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, समझदारी, बट उसको ये भी ध्यान रखना है कि भैया ये कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये कोई प्यार की कहानी नहीं है, ये बिजनेस है। सामने वाला ने पैसा नहीं दिया है और पैसा डिले कर रही है या कर रहा है, इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। दुनिया चलती है भैया, बैंक की पूरी इंडस्ट्री इंटरेस्ट पे चलती है, ओके। तो हम एक कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, किसके साथ में, नताशा के साथ में, और अलग से
बैंक का सेटलमेंट हो जाएगा, वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, बराबर। अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो मैंने आपको बोला सेकेंड लाइन, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय नताशा। मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक सर वो जो लाइन आपने पढ़ा उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्योंकि उसमें कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं करना। डिसऑनर होने के बाद में रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है। रिन्यूअल का मतलब है पुराने को नया बनाओ, पुराने को नया बनाओ, रिन्यूअल। और उसमें 4 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेप। ये 4 स्टेप में 4 जर्नल एंट्रीज आपको लिखने हैं। रिन्यूअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग सारे प्रॉब्लम्स में आता है और सारे प्रॉब्लम्स में नॉर्मली 4 जर्नल एंट्रीज लेकर आता है। आप सबसे पहले पढ़ लीजिए रिन्यूअल में क्या दिया है, पढ़िए। थर्ड लाइन, नताशा देन रिक्वेस्टेड वरुण टू रिन्यू द बिल। हाँ, वो रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़कर, वरुण जी प्लीज रिन्यू कर दीजिए, ओके, थोड़ा पैसा ले लीजिए, बाकी का पैसा बाद में ले लीजिए, इसको कहते हैं रिन्यू। अगेन कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। नो जर्नल एंट्री। थर्ड लाइन, वरुण एक्सेप्टेड ऑन द कंडीशन दैट, यू सी वरुण क्या बोलता है नताशा को, हाँ वरुण, नताशा जी नो प्रॉब्लम, ओके आई डू, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, ओके, बट आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या कंडीशन? नताशा शुड पे 15,000। वरुण नताशा को, हम नताशा को क्या बोल रहे, नताशा यू कांट पे 25,000 बट यू हैव टू पे 15,000 प्लस, प्लीज रीड, क्या इंटरेस्ट 500 इमीडिएटली। आई एम टेलिंग नताशा ओके आप मत भरो 25,000 बट 15,000 देना पड़ेगा, प्लस क्योंकि आप पैसा डिले कर रहे हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट? 500 इमीडिएटली, कल परसों नहीं, अभी अभी। आगे, एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस। अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेश बिल? नया बिल, नया बिल। जो बाकी का पैसा है ना, अब ये बाकी का पैसा क्या है? 25,000 का टोटल डील है। आपने नताशा को बोला अभी की अभी कितना भरो? 15,000, तो बचेगा कितना? आपको थोड़ा मैथ समझ में आना चाहिए, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये था एक सेंटेंस, एक ही सेंटेंस, बट इसमें से पैदा हो गए 4 जर्नल एंट्री, जिसको कहा जाता है रिन्यूअल। सो कोई भी प्रॉब्लम में जब रिन्यूअल का हिस्सा आए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, थोड़ा गाड़ी को संभाल लेना, बराबर से पढ़ लेना और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि ये रिन्यूअल का जो 4 स्टेप है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से 4 स्टेप। ओके, आप ये ऊपर देख सकते हो। पहले स्टेप का नाम है कैंसिल करो ओल्ड बिल को, दूसरे स्टेप का नाम है इंटरेस्ट चार्ज करो, तीसरे स्टेप का नाम है कलेक्ट पार्ट पेमेंट, चौथे स्टेप का नाम है मेक न्यू बिल। 4 जर्नल एंट्रीज आपको करने हैं। मैं छोटा सा वर्किंग आपको करके दिखा रहा हूं, वर्किंग कृपया करके आप कॉपी कर लीजिए और एग्जामिनेशन में भी कीजिए और एग्जामिनर को दिखाइए, शो इट टू द एग्जामिनर। डायग्राम नहीं दिखाने का है, वर्किंग डेफिनेटली दिखाने का है। अब ये वर्किंग क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। ओल्ड बिल 25,000 का है, इसके 2 हिस्से होंगे, मतलब एक हिस्से का नाम है कैश, दूसरे हिस्से का नाम है न्यू बिल। व्हाट डज दैट मीन? यू आर टेलिंग नताशा यू पे दिस मच कैश and for the remaining I'll give you more time, new bill। क्वेश्चन में क्या बोला? अभी के अभी, इमीडिएटली कितना दे? 15,000। बाद में कितना होगा? 10,000। क्यों? बिकॉज 15 and 10 is 25,000। हमेशा याद रखना, ओल्ड बिल के 2 हिस्से, कैश एक तरफ, न्यू बिल एक तरफ। कैश में जितना आएगा बचा हुआ न्यू बिल में चला जाएगा। और क्वेश्चन ये कहता है कि जो 15,000 है उसके साथ में इंटरेस्ट भी देना है, तो मैं उसी के साथ में इंटरेस्ट जोड़ रहा हूं 500, मतलब टोटल कैश कितना देना पड़ेगा? 15,500। प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैंने वर्किंग यहां पे दिखाया बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इट इज सो इंपॉर्टेंट इज बिकॉज इट इज गिविंग द अमाउंट्स ऑफ द 4 जर्नल एंट्रीज। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। 25,000 क्या है? ओल्ड बिल का अमाउंट। तो यू सी द फर्स्ट स्टेप, कैंसिल बिल, उसमें 25,000 आएगा। चार्ज इंटरेस्ट का मतलब कितना? इंटरेस्ट कितना है? 500, उसमें 500 आएगा। कलेक्ट पार्ट पेमेंट, हाउ मच मनी आर यू टेकिंग? यू आर टेकिंग 15,000 प्लस 500, 15,500। थर्ड स्टेप 15,500।
एंड मेक न्यू बिल। नया बिल कितने का बनेगा? 10,000। सो इन दिस वर्किंग विच यू विल ऑलवेज डू इन एवरी प्रॉब्लम, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बराबर, हर प्रॉब्लम में आपको ये वर्किंग करना ही करना है, ओके। और एग्जामिनर को डेफिनेटली दिखाने का है। नाउ हाउ डू वी डू 4 जर्नल एंट्रीज? आपकी जो गाड़ी थी ना जर्नल एंट्रीज की, वो 3 पे आके रुकी है, तो वो कंटिन्यू होगा 4, 5, 6, 7, बट रिन्यूअल में वो 4 स्टेप है, यहाँ पे कंटिन्यू होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, ओके। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, बट अंडरस्टैंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स में आपको रिन्यूअल आएगा। 4 स्टेप्स: कैंसिल ओल्ड बिल, चार्ज इंटरेस्ट, कलेक्ट पार्ट पेमेंट, मेक न्यू बिल। फर्स्ट, कि ये कैंसिल ओल्ड बिल हम कैसे करें? ऊपर के क्वेश्चन में इट डजेंट मैटर उन्होंने क्या दिया, कैसे दिया। वरुण एक्सेप्टेड on the condition that Natasha should pay 15,000 plus interest of 500 immediately and should accept a fresh bill for the balance. ऐसा बोला उन्होंने। आप याद रखिए कि जो सीक्वेंस आपका होगा, जो मैंने बताया उसी तरीके से होगा। सर इन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, अरे तू ना पढ़कर इतना ही समझ के बिल कितने का है, उसके 2 हिस्से में क्या क्या अमाउंट आया और इंटरेस्ट कितना था, बस तू उतना ही समझ। फिर जैसे मैंने बताया वैसे 4 एंट्रीज तू लिख, ओके। पहला एंट्री क्या है? वेल, स्टेप में क्या बोला? कैंसिल बिल। एक काम कर, कैंसिल कर। मतलब क्या है कैंसिल का? रिटर्न कर। रिटर्न कौन किसको रिटर्न करेगा? जिसके पास बिल है वो रिटर्न करेगा। बिल बैंक के पास है, देख लो डायग्राम, ये वाला या तो ये वाला बैंक के पास है ना, और तो किधर गया नहीं है। बैंक हमको देगा, हम नताशा को देंगे। सो आई रिपीट माई सेल्फ, प्लीज अंडरस्टैंड, नताशा ने बिल साइन करके हमको दिया, हमने दिया बैंक को, तो अभी गाड़ी रिवर्स है, रिटर्न करो। कैंसिल का मतलब रिटर्न करो, ओके। तो बैंक मुझको देगा, पहले देखो आया, और मैंने किसको दिया? नताशा को। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हाँ ये एंट्री बहुत लंबी है। इट इज पॉइंटिंग टू नताशा बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक से। वो बीच में वो होता है ना कि भैया मैं लंदन से आ रहा हूं, पर मैं लंदन से दुबई आऊंगा, दुबई से इंडिया आऊंगा, हाँ, तो बीच में क्या होता है? स्टॉप ओवर। तो वैसे ये फ्लाइट निकली बैंक से, लैंड यहाँ पे हुई, पर आगे चली गई नताशा पे। सो इट इज पॉइंटिंग टू नताशा डेबिट and it has started from bank credit. What are we doing? Very simple, we are reversing. Dishonor में हमेशा रिवर्स होता है, जो पहले किया उसको हम, वो गाड़ी को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो नताशा डेबिट कितना अमाउंट? आई रिपीट माई सेल्फ, दिस इज, आई एम नॉट सेइंग एंट्री 1, ये रिन्यूअल का स्टेप 1 है हमारे लिए, 4th एंट्री। नताशा डेबिट बैंक credit. Natasha debit. Please don't by heart because that's not my plan at all. जो मैंने एरो बनाया उसको आप अंडरस्टैंड करो। Being bill cancelled for renewal because renew करने के लिए बिल, पुराने बिल को कैंसिल किया गया ताकि पुराने से नया बनाया जा सके, ओके। आई होप स्टेप 1 आपको समझा। बिल को कैंसिल करो, चलो हो गया। फिर क्या करना है? अरे देख ले ऊपर क्या बोला, चार्ज इंटरेस्ट। अभी ये क्या है? चार्ज इंटरेस्ट। नताशा ने गलती किया तो नताशा के सिर पे आपको इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा नताशा जी आपने मिस्टेक किया, इंटरेस्ट तो भुगतना है 500। अच्छा, मतलब क्या करना है? अरे कुछ नहीं, ये जो इंटरेस्ट का डब्बा दिखता है ना, वो तुम नताशा पे डाल दो, नताशा पे ये इंटरेस्ट है, नताशा जी तुम पे रखो। So the arrow is pointing to Natasha and it is starting from interest. हमने उनके सिर पे डाल दिया, प्लीज नोट। चार्ज का मतलब क्या है? वसूली नहीं किया आपने सिर्फ बोला है Natasha, it's a mistake that you did not pay the money on time. Therefore, you will be charged with, जैसे पेनल्टी होती है, फाइन होता है,
अगर आप कोई भी बिल लेट दो तो पेनल्टी देनी पड़ती है ना। हाँ, जैसे ही घर पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या आपके ईमेल में आता है या व्हाट्सएप से आता है, तभी के तभी आपको पे नहीं करना। वो करने से वो कंपनी जो है ना आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डालती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिया, अभी आपको इतना देना पड़ेगा, अगले आने वाले 10 दिनों में हम वसूली के लिए आएंगे। तो चार्ज हमेशा पहला होना चाहिए, वसूली बाद में करो, बट पहले आपको बोलना पड़ेगा, ड्रॉवर को ड्रॉई को बोलना पड़ेगा आपसे गलती हुई है, आपको 500 रुपया रेडी रखना पड़ेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, टू टेल द ऑपोजिट पार्टी यू आर एट फॉल्ट, यू हैव टू बी नाउ विलिंग टू पे इंटरेस्ट। यू आर नॉट टेकिंग इट, यू आर नॉट वसूली नहीं कर रहे हो, कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनके सिर पे वो जिम्मेदारी उनके कान में बोल के रख रहे हो। ओके, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या है? नताशा डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 500 रुपीज। बिकॉज आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी गाड़ी में स्लो लेके जा रहा हूँ। नताशा टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। आई रिपीट, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग रिन्यूअल, थोड़ी गाड़ी में स्लो लेके जा रहा हूँ। ये नेक्स्ट टाइम भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी मल्टीपल टाइम आएगा। उसके बाद में हम स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। ओके, स्टेप 2 हो गया चार्ज इंटरेस्ट। स्टेप 3 क्या है? पढ़ो ना ऊपर, कलेक्ट पार्ट पेमेंट। पैसे ले लो नताशा से, जितना देती है ले लो। हाँ, तो कैलकुलेशन में देखो ना, कैश के अंदर क्या है? 15,000 प्लस इंटरेस्ट 15,500। आपको क्या करना है? अरे पैसे लेने हैं, प्लीज नोट दैट। अच्छा, तो देखो ये थी तीसरी एंट्री, पैसा आया, कैश डेबिट टू नताशा, कैश डेबिट टू नताशा। हाउ मच? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर अमाउंट कितना है? 15,000 और 500। कुछ बच्चे, सम स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट 15,500 to Natasha 15,500 being part payment received including interest. Some students get a bit confused. Sir, you wrote 500 interest in entry 6. Also you have written it in entry 5. So is it double? No, it's not double. In entry 5 we only have done the informing job. हमने सिर्फ नताशा को बोला 500 आप रेडी रखो। एंड इन एंट्री 6 वी हैव डन द कलेक्शन जॉब। पहले आप अगर दोस्त के घर पे जाते हो तो कॉल तो कर लो, उसको रेडी रहना पड़ेगा ना, कॉल तो कर लो। देखिए ऐसे ना टपक जाओगे तो वो रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम होगा ना। ओके, टाइम वेस्ट होगा। इफ अ बॉय wants to take a girl for dinner, a friend, girl who is a friend, और वो बिना बताए पहुंच गया घर पे। टिंग टोंग, मैडम ने दरवाज़ा खोला, चल हम लोग मैं तुमको डोमिनोज लेके जाता हूँ, पिज़्ज़ा हट लेके जाता हूँ, KFC लेके जाता हूँ। तो मैडम विल से, अरे अरे यू शुड हैव टोल्ड मी ना, आई हैव टू लुक गुड, आई हैव टू पुट दिस पुट दैट, आई हैव टू लुक गुड, सो यू हैव टू वेट नाउ। And the boy is like, okay, how long? 1 hour. My God, लड़का परेशान, और 1 घंटे में तो जाके वापस आ जाएगी। लड़के की गलती, पहले मैडम को बोलना चाहिए रेडी रहो, फिर मैडम रेडी रहेगी, टाइम नहीं जाएगा। सिमिलरली चार्ज इंटरेस्ट का मतलब है रेडी रहो, और तीसरे में कलेक्ट कर लो। मैडम चलो चलो जाते हैं हम लोग। ओके, सो प्लीज नोट 500 रुपया इंटरेस्ट भले ही 2 बार है, हमने लिया 1 ही बार है, बट पहले बोलना, द टेलिंग इज इंपॉर्टेंट देन द टेकिंग। नो, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, द टेलिंग देन द टेकिंग। ओके, 3 स्टेप तो हो गए। 4th स्टेप क्या है? अरे नया बिल बनाओ। देखो ना ऊपर, ये नया बिल कैसे बनता है? जैसे पुराना बिल बना, जैसे कोई भी बिल बनता है। पहले आप नताशा पे एक बिल ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन, आई होप आपको दिख गया वो। उसकी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि वो ड्रॉन है। नताशा पढ़ के समझ के हमको वापस दे देगी। दिस इज बिल रिसीवेबल टू नताशा, वी हैव ऑलरेडी डन इट। आप बोलोगे सर ये एंट्री तो हो चुकी है, तो क्या हो गया? वो ओल्ड बिल की एंट्री थी, ये नए बिल की एंट्री है। वो ओल्ड बिल के अमाउंट के लिए था, ये नए बिल के अमाउंट के लिए है, जो आप कैलकुलेशन देख सकते हो 10,000 का है। तो रिन्यूअल में पुराना स्टोरी खत्म, नई स्टोरी चालू।
एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन रिन्यूअल. बराबर. आप जब आपका इंटरनेट प्लान रिन्यू करते हो तो क्या होता है, पुराना प्लान खत्म, नया प्लान चालू. तो रिन्यू का मतलब वही तो है, पुराना खत्म नया चालू. सो नया बिल पुराने बिल के जैसे ही बनता है, पहले ड्रॉ बाद में एक्सेप्ट. तो इट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू नताशा being new bill accepted. I repeat, being new bill accepted. So entry number 4, 5, 6, 7, these are the process of renewal. 99% every problem will have renewal. Your attention level has to increase. ध्यान थोड़ा बढ़ना चाहिए कि रिन्यूअल होता कैसे है. पढ़ लो ना क्वेश्चन, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, बट पढ़ो. क्योंकि अगर 1 रुपया भी मिस आउट हो जाएगा ना तो एंट्रीज गलत आएगी, मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके चलो, अभी नया बिल बन गया. ये नया बिल जो है किसके पास है? नया बिल हमारे पास है. कुछ बच्चे पूछेंगे सर बैंक का क्या? बेचारे बैंक को तो पैसे ही नहीं मिले. नहीं मिलते हैं, और वो पैसे देने की जिम्मेदारी हमारी होती है, हमारी, वरुण की इस प्रॉब्लम में. बट उन्होंने मेंशन नहीं किया अभी तक कि वरुण ने पैसा बैंक को दे दिया. मेंशन नहीं किया. मेंशन करेंगे तो अगर वैसा एक्शन होगा तो हम डायलॉग भी लिखेंगे, हम स्टोरी भी लिखेंगे. होना चाहिए. नहीं है, इसके लिए मैंने बोला नहीं है. ओके ओके, रिन्यूअल हो गया. रिन्यूअल के बाद क्या पता नहीं, देखते हैं. ऊपर पढ़िए. दीज अरेंजमेंट्स वो कैरी थ्रू. अरेंजमेंट्स का मतलब क्या? द 4 स्टेप्स. रिन्यूअल हो गए, अच्छी बात है, हमने कर लिया. आगे, नताशा ऑनर्ड द न्यू बिल ऑन इट्स ड्यू डेट. ओके ओके ओके, नताशा ने जब नया बिल का, ओल्ड बिल के टाइम पे पैसा नहीं दिया, नए बिल के टाइम पे पैसा दिया. अरे बढ़िया है. तो स्टोरी खत्म तो हो सकती है ना. अगर डिसऑनर करेगी तो फिर से और ड्रामा हो जाएगा. सो ऑन द पेमेंट फॉर द न्यू बिल, नो नखरा, नो ड्रामा. ओके, नो ह्यूमर, नो मजाक मस्ती, पैसा मिल गया. ऑनर कैसे होता है? वेल सिंपल, हमने पहले भी किया है. 2 एंट्री होते हैं, 2 एंट्री को हम मर्ज करके एक करते. पहले नताशा ने पैसा दिया, हमने उनका बिल उनको दे दिया. स्टोरी समाप्त. पहले नताशा ने पैसा दिया, हमने उनका बिल उनको दे दिया. प्लीज नोट देयर आर 2 एंट्रीज, कैश टू नताशा, नताशा टू बिल रिसीवेबल. बट आई हैव ऑलरेडी थॉट यू प्रीवियसली कि नताशा कैंसिल. 2 एंट्री को हम मर्ज करके एक एंट्री कर देते हैं. एंड दैट एक एंट्री इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश 10,000, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल रिसीवेबल 10,000. वी हैव डन दिस एंट्री प्रीवियसली, आज नहीं, इसके पहले किया है. बट जो मूवी होती है, जो कहानी, ये कहानी है ना, इसकी समाप्ति अलग अलग सीन्स के साथ हो सकती है. लास्ट टाइम वाले सीन अलग थे, आज का सीन अलग है. ये ऑनर है भैया, हमको हमारा पैसा मिल गया. अभी हमको नताशा को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है. अभी हमको ग्रैंड टोटल करना पड़ेगा. ग्रैंड टोटल नहीं करेंगे तो कुछ प्रोफेसर्स थोड़े चिढ़ जाते हैं और मार्क्स काटते हैं. क्यों मार्क्स काटे भैया? हम टोटल करके दे देते हैं. स्टार्ट से एंड तक द कंप्लीट एडिशन हैज़ टू बी डन, एंड इफ इट इज़ करेक्ट यू विल गेट 1,36,000. So I repeat myself, what is it that different that I have done today? Well, I introduced to you the concept of renewal, which has 4 journal entries, and in future, in almost every sum, we will continuously be doing renewal. Okay, I hope आपको at least थोड़ा आइडिया आ गया कि अच्छा ये renewal होता क्या है. पिछले टाइम पे नहीं था तो नहीं किया, आज था तो किया, अगली बार होगा, उसके बार होगा, मैं रिपीट करता जाऊंगा. थोड़ा थोड़ा चेंजेस यहाँ वहाँ पे होगा. ये सारे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर थे. ड्रॉइंग का नहीं पूछा तो हमने सॉल्व नहीं किया. बराबर. ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया. अगर आ गया तो लाइक ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों तक लेक्चर के बारे में और ये चैनल के बारे में और बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के बारे में जानकारी फॉरवर्ड ज़रूर कर लेना. ये जो भी सम्स है, इसका जो PDF है, क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म जब होगा ना, तब हम टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे. आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वो भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना. दैट इज़ इट फॉर मी फॉर द डे.
नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके अलावा बड़े छोटों परिवार वालों सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस। दैट इज़ इट फॉर मी फॉर टुडे। टाटा।